Good morning, students. In last lecture, we had discussed the business activities. There are two types of business activities, that is industry and commerce. In industry, we had discussed that in industry we convert the raw material into finished goods, and there are three types of industry: primary industry, secondary industry and tertiary industry. Primary industry extract the resources by nature, and in secondary industry we convert raw material into finished goods, and tertiary industry provides us services. In this lecture we are going to discuss the concept of commerce. So concept of commerce is the backbone of industry. Commerce provides us so many services. Like commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to ultimate customer. But goods are produced at one places and customers are scattered at different places. There is no use of goods until or unless it reaches to the customer, ultimate customer. So commerce removes the problem of this type of problem is solved by the commerce. Commerce provides us so many services. Goods are produced at one places, and if the customer have no knowledge about the production, then what happens? Goods are produced in large quantity and their usage is in small quantity. So these all kinds of problems are solved by commerce. Commerce provides us so many services, for example, transport services, banking services, finance services, advertising services, insurance services. All these types of services we are going to discuss later. So there is functions of commerce. Commerce performs so many types of functions because earlier we had discussed that commerce is the backbone of industry. Is it clear? Now first is helps in removing hindrance of person. Goods are produced at one places and customers are scattered at different places, and the trade segment of commerce creates a link between manufacturer and consumer. If there is no existence of commerce, then manufacturer is need to be search customer and customer is need to be search manufacturer. So this kind of problem is solved by commerce. The trade segment of commerce solve this type of problem. बेटा जो कॉमर्स है इसमें हिंड्रेंस ऑफ पर्सन में क्या है कि गुड्स हमारी एक प्लेस पे प्रोडक्शन हो रही है और वो स्कैटर्ड, कस्टमर्स हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कैटर्ड है. जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स का, दिस सेगमेंट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ दिस goods are produced at one place and customers are scattered at different places. This problem is solved by the trade segment of commerce. Is it clear? If there is no commerce, if there is no person, then how the goods is reached to the ultimate customer, and then what are the uses of production of goods? So this is the first function of commerce, that is help in removing hindrance of person. Is it clear? जो ट्रेड सेगमेंट है, जो ट्रेडर है, ये क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेगा लार्ज क्वांटिटी में और वो गुड्स को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने का काम किसका है? कॉमर्स का. तो अगर हमारे पास बीच में पर्सन ना हो तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर किसको सर्च करेंगे? कंज्यूमर को, और कंज्यूमर किसको सर्च करेंगे? मैन्युफैक्चरर को. और अगर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को सर्च करने में अपना सारा टाइम बेटा स्पेंड करेंगे तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे कैसे फोकस करेंगे? सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स. सेकेंड, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. बेटा सेम, goods are produced at one places and customers are scattered at different places. Now the question is that, अब क्वेश्चन ये है कि कैसे गुड्स को कस्टमर के पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाएं. ठीक है ना बेटा, अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास और वो गुड्स अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं जा रही हैं तो उस गुड्स की प्रोडक्शन का कोई यूसेज नहीं है. तो उनके कस्टमर के पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाने के लिए ये हमारा कॉमर्स ही ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट. Transport solves the problem that goods is produced at one places and customer are scattered at different places. Transport services solve this problem. अब ट्रांसपोर्ट बेटा डिफरेंट टाइप्स के हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ होती है, बाय एयर, बाय ट्रेन, पाइपलाइंस, रेलवे है, बसेस है, ट्रक्स है, इनके थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल
ज़रूरी नहीं है बेटा कि जहाँ जहाँ कस्टमर है सारी गुड्स की प्रोडक्शन उसी पर्टिकुलर प्लेस पे हो, तो उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, कॉमर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी की प्रोडक्शन कहाँ होती है, आसाम और दार्जिलिंग में, बट टी का यूसेज तो बेटा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू हम गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते हैं। थर्ड है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। बेटा टाइम, ये जो टाइम की प्रॉब्लम है ये भी हमारा कॉमर्स ही सॉल्व करता है बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ वेयर हाउसिंग। There is a time gap of between the production and usage of goods. Some goods are produced whole of the year, but consumption are in some particular month, or some goods are produced in only some month and their usage is in all the year, whole year. For example, बेटा वीट है, पल्सिस है, राइस है, इनका प्रोडक्शन क्या होता है, कुछ ही मंथ होता है, लेकिन इनका जो यूसेज है वो पूरे साल होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन पूरे साल होता है लेकिन उनका जो यूसेज है वो सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर मंथ में होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी गुड्स, ऐसी कौन सी गुड्स है जिनका प्रोडक्शन पूरे साल, ये सब लोगों को पता है बेटा, वीट, पल्सिस, राइस, इनका प्रोडक्शन सिर्फ मंथ वाइज होता है, सीजन वाइज होता है। बट क्या हम इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन तो हमेशा करते हैं ना, दाल चावल गेहूँ आटा ये सब तो हम पूरे साल यूज़ करते हैं। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एसी, कूलर, हीटर, कुछ चीज़ों का जो यूसेज है वो समर में होता है, कुछ चीज़ों का विंटर में होता है, बट इनकी प्रोडक्शन पूरा साल होती है। तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ प्रोडक्ट। दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द फंक्शन ऑफ कॉमर्स, दैट इज वेयर हाउसिंग। ठीक है ना बेटा। तो हम ये जो प्रॉब्लम है कि गुड्स को इतने टाइम तक, जो यहाँ पे मैंने कहा कि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड यूसेज, दिस गैप इज फुलफिल्ड बाय द सर्विसेज दैट इज वेयर हाउसिंग। अब हम क्या करते हैं, वेयर हाउस को यूज़ करते हैं। कॉमर्स हमें वेयर हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम गुड्स को जब उनका यूसेज हो जा रहा है, जब उनका प्रोडक्शन हो जा रहा है तो उन गुड्स को हम उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ वेयर हाउसिंग इज सॉल्व बाय कॉमर्स। अब देखो बेटा, डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउस यूज होते हैं। जैसे जो हमारी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, पेरिशेबल गुड्स दैट मीन्स कि जिनका हमें जल्दी खराब होने का डर रहता है, जैसे वीट है, पल्सिस है, इनको हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। और वो गुड्स जिनका हमारे पास जैसे रिस्क के चांसेस है, जैसे आग लगने का, इस तरह के, तो इनको हम डिफरेंट टाइप के जो इनफ्लेमेबल वेयर हाउस है वहाँ पर इनको स्टोर करके हम रखते हैं। फोर्थ इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। बेटा एक्सचेंज, ये कॉमर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सचेंज। व्हेन गुड्स आर सोल्ड और परचेज, देन देयर पेमेंट इज थ्रू द सर्विसेज ऑफ, थ्रू द हेल्प ऑफ बैंक। बैंक प्रोवाइड्स अस द सर्विसेज ऑफ एक्सचेंज मनी। बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक के थ्रू हम अपनी मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक हमें क्या करता है बेटा, बैंक ड्राफ्ट इशू करता है, चेक इशू करता है अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है। बैंक जो है वो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। बैंक की हेल्प से हम मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी हमारी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैंक हमें ओवरड्राफ्ट लिमिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ओवरड्राफ्ट बेटा, जैसे हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस कम है और हमें उससे ज़्यादा विड्रॉ करना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ हम बैंक वो विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक हमें बिल डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को हमने गुड्स सेल की, उसने कहा कि हम आपको 3 मंथ के अंदर पेमेंट कर देंगे, उस पर टाइम था 3 मंथ का। तो अब वो उसने हमें बिल प्रोवाइड करा दी। अब हम 3 मंथ से पहले उस बिल की डिमांड, उस अमाउंट की डिमांड उस पर्सन से नहीं कर सकते। रीज़न ये है क्योंकि उसने हमें बिल दे दिया है और वो बिल उसने हमें रिटर्न में दिया है। बट अगर हमें इस टाइम पीरियड से पहले बिल की ज़रूरत, अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई, तो हम उसको क्या करते हैं, बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। दैट इज बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, एंड बैंक charges some particular percentage of amount like 1%, 2%, that depends on the amount of money. Helps in removing hindrance of risk. Risk is the main part of business. Risk is the important part of business, because in business there is no risk, no gain, and that is the compulsory for businessman, and profit is the reward for bearing the risk for businessman.
Now in risk there are so many types of risk for the businessman. For example बेटा गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हुआ है, हो सकता है वहाँ पर आग लग जाए, हो सकता है वहाँ से चोरी हो जाए। इन सब प्रॉब्लम की वजह से अगर बिजनेसमैन गुड्स को स्टोर नहीं करेगा तो कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो कॉमर्स हमें क्या करता है, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जो बिजनेसमैन की जो प्रॉब्लम है रिस्क की, ये प्रॉब्लम भी कौन सॉर्ट आउट करता है, बिजनेसमैन। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अस द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोवाइड करती है कंपनसेशन एंड फुलफिल अवर लॉस। इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, तो बिजनेसमैन रिलैक्स होता है, वो अपनी गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है। बेटा आप देखिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमने कहा कि हमें कंपनसेट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेसमैन केयरलेस हो जाए। बिजनेसमैन को भी अलर्ट रहना है कि ऐसा नहीं कि अब ठीक है हमने इंश्योरेंस करा दिया है तो हम रिलैक्स है चाहे कुछ भी हो। तो बिजनेसमैन को भी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को माइंड में रखना है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ कॉमर्स दैट इज प्रोवाइडिंग टू बिजनेसमैन नॉलेज। बेटा गुड्स की जो प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, द प्रोडक्शन इज एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। इफ कस्टमर हैव नो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट देन हाउ कैन दे परचेज द प्रोडक्ट। इन दैट केस प्रोडक्शन इज मोर एंड देयर डिमांड इज लेस। सो द नॉलेज दैट मीन्स दैट इज एडवर्टाइजिंग। एंड एडवर्टाइजिंग प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। देन बेटा जो एडवर्टाइजिंग है ये क्या करती है, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि ये प्रोडक्शन कंपनी ने की है। क्योंकि बेटा कस्टमर जो है वो अपने घर पर है, अगर उनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा कि कंपनी ने किस तरह की गुड्स की प्रोडक्शन की है तो वो किस तरह से परचेज करेंगे, नहीं परचेज करेंगे। तो जो एडवर्टाइजिंग जो हमारी सर्विसेज है ये हमारी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। और एडवर्टाइजिंग का आज के बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, क्योंकि जो कंपनीज है वो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन कर रही है और वो प्रोडक्शन हमारी यूजलेस है जब तक कि उसकी इंफॉर्मेशन हम कस्टमर को ना पहुंचा दे। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी कौन सॉल्व करता है, कॉमर्स। दैट मीन्स कॉमर्स प्रोवाइड्स अस सो मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट इज पर्सन, दैट इज मिडल मैन, प्लेस एट कस्टमर्स प्लेस, टाइम बाय वेयर हाउसिंग, एक्सचेंज बाय बैंक, रिस्क by providing insurance services, and knowledge by providing advertising services. So commerce provides us so many services. Is it clear? Hope so ये सबको commerce का concept clear हो गया होगा. Next is classification of commerce. Commerce is classified into two types, that is trade. It is trade and trade क्या होता है बेटा? Trade is an integral part of business. Trade क्या है? Trade is an integral part of business. ट्रेड सेगमेंट जो है, ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ट्रेड सेगमेंट क्या करता है बेटा? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को एक साथ उनको एक साथ लाता है। बिकॉज इन बिजनेस देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बेटा अगर हमारे पास ये ट्रेड सेगमेंट नहीं होगा कॉमर्स का तो कैसे होगा? तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर में लिंक नहीं होगा, और अगर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर में लिंक नहीं होगा तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को सर्च करेंगे और कंज्यूमर किसको सर्च करेगा? मैन्युफैक्चरर को। अभी हमने ये यहाँ पर ट्रेड वाले में डिस्कस किया था इसको। तो ट्रेड सेगमेंट हमारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है बेटा। ट्रेड क्या करता है कि ट्रेड जो है हमारा इस तरह से प्रोसेस होता है ना बेटा, मैन्युफैक्चरर किसको गुड्स प्रोवाइड कराएगा? होलसेलर को।
होलसेलर गुड्स किसको प्रोवाइड कराएगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको कराएगा, कंज्यूमर को। अगर हमारे ये होलसेलर और रिटेलर बेटा नहीं होंगे तो अल्टीमेट हमारे पास क्या होगा, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट किसको गुड्स प्रोवाइड कराएंगे, कंज्यूमर को, और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर को। बट क्या ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स डिफरेंट प्लेसेस पे होती है और नंबर ऑफ कस्टमर्स है, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स उन मैन्युफैक्चरर के पास कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे वो मैन्युफैक्चरर उनकी डिमांड पूरी करेगा। तो ये एक हमारा सिस्टमेटिक वे से होता है। तो दैट द कॉमर्स क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, दैट इज इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड that means buying and selling of goods in geographical boundaries of country, that is called internal trade। जब हम गुड्स को एक ही कंट्री की लिमिट के अंदर परचेज और सेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के अंदर ही हम गुड्स का परचेज सेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। देयर इज टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एज यू ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या करता है बेटा कि वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करता है, और होलसेलर जो होता है बेटा वो एक सिंगल लाइन के प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। होलसेलर क्या करता है कि कैश में सारी गुड्स को मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी में, और जो रिटेलर्स है उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को सेल करता है। होलसेलर की जो स्पेशलाइजेशन होती है मोस्टली वो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में होती है। होलसेलर क्या करते हैं, पूरा स्टॉक का स्टॉक मैन्युफैक्चरर से उठाते और उसको रिटेलर को धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और होलसेलर जो रिटेलर को है वो गुड्स को क्रेडिट में भी सेल कर देते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का क्या काम है, रिटेल ट्रेड होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज करेंगे, और उसके बाद अल्टीमेट कंज्यूमर को वो गुड्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। रिटेलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिटेलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट होलसेलर से कंसल्ट करके हर तरह के प्रोडक्ट का कलेक्शन अपने पास रखते हैं, और ये अपने कंज्यूमर्स को गुड्स को क्रेडिट में भी सेल करते हैं। तो ये तो था हमारा इंटरनल ट्रेड। सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड नेम से ही क्लियर हो रहा है, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री, दैट मीन्स अक्रॉस द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। अब जब एक्सटर्नल ट्रेड हम अक्रॉस द कंट्री जब हम गुड्स की सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम इंपोर्टिंग भी हमारे लिए ज़रूरी है, एक्सपोर्ट करना भी। इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन रिजर्व हमारे इंडिया में आएगा, और एक्सपोर्ट करेंगे तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आएंगी, और जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन रिजर्व भी हमारे पास होगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स selling of goods, that means when we sold the goods to another country, that is called export। ठीक है, और जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे बेटा वो भी ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व हमारे इंडिया में आएगा। इम्पोर्ट when we purchase the goods from another country, when we import the goods from another country, that is called importing। and importing के थ्रू क्या है, हमें नई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, हमारी कंट्री में नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, हम भी अपडेट रहेंगे। एंट्री पोर्ट बेटा क्या होता है, जब हम गुड्स को एक कंट्री से परचेज करते हैं उसको हम अपनी होम कंट्री में कंजप्शन नहीं करते, उसको अनदर कंट्री में, अनदर फॉरेन कंट्री में उसको हम सेल कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंट्री पोर्ट। जब हम गुड्स की परचेजिंग है वो अपनी होम कंट्री में कंजप्शन के लिए नहीं कर रहे, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी अनदर कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, एंट्री पोर्ट। So that is the concept of trade. Trades are of two type, that is internal trade or external trade. Internal trade are of two type, wholesale trade and retail trade, and external trade are of three types, export, import or entry port. Now next is aids or auxiliaries to trade. बेटा ट्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये हमारे बिजनेस को स्मूथ वे से रन करने में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो जो हमारी कॉमर्स है वही है। जो बिजनेस को हमारे स्मूथ वे में रन करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारी सर्विसेज, क्योंकि वो सर्विसेज ही हमारे बिजनेस के लिए बेस है। तो अब हमें यही एक्सिलरीज को पढ़ना है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड्स की प्रोडक्शन है वो एक प्लेस पे है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे भी रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद लेबर को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना है, क्योंकि लेबर भी तो अलग अलग प्लेसेस से गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए आते हैं। इन सारी चीज़ों को मूव कराना, गुड्स की प्रोडक्शन हो जाने के बाद अल्टीमेट कस्टमर तक उसको पहुंचाना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो सॉर्ट आउट होती है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के थ्रू होती है। बेटा अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना हो तो गुड्स का यूसेज कैसे होगा? जैसे एग्जांपल अभी हमने ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में। ट्रांसपोर्ट जैसे टी का प्रोडक्शन है वो आसाम दार्जिलिंग में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिनका प्रोडक्शन एक प्लेस पे हो रहा है लेकिन उनका यूसेज तो सब कर रहे हैं, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट के साथ साथ बेटा कम्युनिकेशन का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन, जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, जो हमारे कंज्यूमर है, जो बिजनेसमैन है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उनका कम्युनिकेट हो रहा है, तो वो हमारी कम्युनिकेशन फैसिलिटी है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में, और ये हमारे बिजनेस को स्मूथ वे से रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग प्रोवाइड्स अस लोन फैसिलिटी, ठीक है ना, लोन बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग प्रोवाइड्स अस बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी, और उसके बाद हमारे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और क्रेडिट लिमिट से भी ज़्यादा हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, बिल को डिस्काउंट कराने का काम करती है। तो ये सारी जो बैंकिंग की, फाइनेंस की फैसिलिटी है ये भी हमें प्रोवाइड कराते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे तरह के रिस्क हैं और उन रिस्क से अपने आप को सिक्योर कराने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड, ये सब बेटा सर्विसेज है और सर्विसेज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करती है, कंपनसेट करती है, जो हमारा जो लॉस है उससे हमें पूरी तरह से फुलफिल करा देती है, लॉस को कंपनसेट करती है। क्योंकि अगर इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं होगी तो बिजनेसमैन जब गुड्स को स्टोर करके रखेगा तो उसके माइंड में एक तरह से डर रहेगा, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा, गुड्स को स्टोर करके नहीं रखेगा। बट इंश्योरेंस कंपनी हमारी इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देती है। वेयर हाउसिंग, अब वेयर हाउसिंग गोडाउंस में मैंने अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था कि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड यूसेज, सो दिस गैप इज फुलफिल बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ वेयर हाउसिंग। ये जो गैप है प्रोडक्शन और यूसेज में, तब तक हम गुड्स को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, वेयर हाउस में। सो वेयर हाउसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, क्योंकि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो और जब तक कस्टमर को नॉलेज नहीं है तो गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो हमारी यूजलेस है, क्योंकि जब हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देंगे तभी तो कस्टमर उसके बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे और उसको परचेज करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिजनेस रिस्क। Risk is the important part of business, because in business if there is no risk, no gain. Then what is the risk? Risk is the chances of loss. Business risk refers to the probability of loss or unadequate profit due to uncertainties which are beyond control of demand for which is beyond no control. In risk, businessman has no control. Is it clear? In risk there is a chances of loss, that means it may happen or not. For example, demand for product is declined, change in taste, change in fashion, change in government policy of business in which businessman has no control over it. So that's why this is called risk. Nature of business risk. Business risk arises due to uncertainties. Risk is created due to uncertainties because there are certain things in the business that is no one can say what is happened to going in future. So that is the main reason of business risk. अब business risk में uncertainties है, हमें नहीं पता बेटा फ्यूचर में क्या होगा, चेंज, लोगों की डिमांड चेंज हो जाएगी, फैशन चेंज हो जाएगा, कुछ कहा जा सकता है फ्यूचर में, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, और वैसे भी फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा। Risk is an essential part of every business. Risk is the most important part of
every business, because if businessman is ready to bear risk then definitely he or she will earn profit. So रिस्क जो है वो हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन रिस्क बेयर करने के लिए रेडी है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस में बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। इन बिजनेस नो रिस्क नो गेन। अगर बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेगा तो उसको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होगा। रिस्क जो है वो हर बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्क का मतलब क्या है कि चांसेस ऑफ प्रॉफिट, चांसेस ऑफ लॉस, दैट मीन्स इट मे और मे नॉट। और अगर बिजनेसमैन रिस्क को बियर कर लेगा तो डेफिनेटली उसको आज नहीं तो कल तो प्रॉफिट होना ही है। तो रिस्क इज एसेंशियल, दैट मीन्स कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर। पहले हम पढ़ेंगे नेचर। अब बिजनेस हमारे डिफरेंट नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का बिजनेस है फैशनेबल आइटम का है, इस तरह की आइटम का है, तो बेटा उसमें फैशन चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो बहुत हाई है, क्योंकि अब उनका जो फैशनेबल प्रोडक्ट का बिजनेस है, अब उसमें हो सकता है आज फैशन चेंज हो जाए, क्या भरोसा कि आज कुछ चीज़ की डिमांड है, कल किसी और चीज़ की डिमांड होगी। अगर वो जैसे ही फैशन चेंज होगा वहाँ पे रिस्क के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो हमारी जो गुड्स की प्रोडक्शन हमने की है उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई उसकी डिमांड नहीं करेगा। बट नेचर अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी का बिजनेस स्टैंडर्डाइज्ड आइटम का है, जैसे रिटेलिंग वगैरह का जो हमारी डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर उस तरह का बिजनेस है तो बेटा उसमें रिस्क के चांसेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोरोना वायरस हमारा चल रहा है, आपको पता है सब जगह लॉकडाउन है, लेकिन बेटा लॉकडाउन कुछ चीज़ों के लिए नहीं है, जैसे जो हमारी डेली यूज़ की है आइटम, जैसे खाने पीने की चीज़ें, इन सब की चीज़ों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। करियाना स्टोर है, ये सारी जो मेडिकल है, ये सारे प्रोडक्ट हमारे आज भी सेल हो रहे हैं, इनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। तो दैट मीन्स अब जिनका और चीज़ों का जैसे फैशनेबल प्रोडक्ट है, उन सब चीज़ों जो लग्जरी आइटम्स है उनकी कोई डिमांड नहीं है। तो ये डिपेंड करता है बेटा कि हमारा किस नेचर का बिजनेस है। तो नेचर हो गया, और साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। साइज ऑफ बिजनेस दैट मीन्स कि इफ आवर बिजनेस इज ऑन लार्ज स्केल देन देयर इज अ चांसेस ऑफ मोर रिस्क, इफ आवर बिजनेस इज ऑन स्मॉल स्केल देयर इज चांसेस ऑफ लेस रिस्क। सो दिस इज द पॉइंट, दैट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। अब बेटा अगर बिजनेसमैन रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, नहीं कहीं इन्वेस्ट करना है 1 करोड़, नहीं मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, अगर लॉस हो गया तो दैट मीन्स अगर वो लॉस की वजह से मनी ही इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा। बट इफ ही इज रेडी टू इन्वेस्ट मनी देन डेफिनेटली ही इज bearing the profit is reward for bearing that particular risk. So बेटा risk is necessary part of business. अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा। जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन को हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी होता है, बट उसकी अब ऐसा तो है नहीं कि लॉस के डर से बिजनेसमैन मनी इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई रिस्क ही नहीं लेगा। तो रिस्क लेना भी जरूरी है बिजनेसमैन के लिए, एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। इफ business is in profit then this is a reward for business. causes of business risk, क्या क्या causes है, किस वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि बिजनेस में हमें लॉस होता है, बिकॉज रिस्क इज द चांसेस ऑफ लॉस। क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें बिजनेस में लॉस होता है, व्हाट आर द कॉजेज। फर्स्ट बेटा नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज पे किसी का कोई रोक नहीं, वो इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है ना। आप जैसे आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस आ गया, इस पे किसी का कंट्रोल है या एक्सपेक्टेड था। ये कुछ चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशन होती है कि इस वजह से हमें लॉस हो सकता है, बट जो हमारे नेचुरल कॉजेज है ये इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, इस पे बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारा अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, बेटा ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ये नेचुरल कॉज है, इस पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। सो फर्स्ट कॉज इज द नेचुरल कॉज, दैट इज इंडिपेंडेंट फिनोमिना ओवर विच नो वन हैज कंट्रोल, ठीक है ना। नो वन कैन प्रिडिक्ट द कॉजेज ऑफ नेचुरल। किसी को पता था 6 महीने पहले कि कोरोना वायरस आएगा, तो ये सिचुएशन हमारी इंडिया की हो जाएगी, इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो जो हमारे नेचुरल कॉज है वो अनएक्सपेक्टेड है, और इस कोरोना वायरस ने हमारे बिजनेस पे मेजर इम्पैक्ट डाला है। सेकेंड इज द ह्यूमन कॉज। अब ह्यूमन कॉज नेम से ही क्लियर हो रहा है कि दैट कॉज विच इज क्रिएटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कॉज। अब ह्यूमन का भी रिस्क क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल होता है एक बिजनेस में। और ह्यूमन देखो बेटा, जो ह्यूमन कॉज है
उसको हम कम तो नहीं कर सकते बट उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे नेचुरल कॉज पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट ह्यूमन कॉज को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, जैसे डिसऑनेस्टी है, कोई एम्प्लॉय हमारा डिसऑनेस्ट बेईमान निकल गया, उसने हमारे सीक्रेट को लीक कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसने मशीनरी को प्रॉपर वे से हैंडल नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ह्यूमन कॉज। उसको मशीनरी को प्रॉपर वे से चलाना नहीं आया, वो मशीनरी हमारी पूरी तरह से करप्ट हो गई, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कॉज। जो ह्यूमन बीइंग की वजह से कॉज क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कॉज। थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए, तो वो सारे हमारे कौन से होते हैं, इकोनॉमिक कॉज। जैसे आप लोग, इकोनॉमिक कॉज का भी हमारे बिजनेस पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल हमने जो बिजनेस में प्लानिंग की थी, अब वो क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। हमने सोचा था कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो हम बाहर से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि हम बाहर से नहीं इंपोर्ट कर सकते, मतलब कुछ भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती है। बेटा आप लोगों को पता होगा ये चीज़ कि 1971 में पढ़ा होगा हम कहीं, 1971 में जब हमारी जनता गवर्नमेंट आई थी, तो जनता गवर्नमेंट के इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स थे कि क्या हुआ था कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे इंडिया से सब की सब वापस चली गई थी, तो उसका हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। सारी जो कोको कोला, सैमसंग, ये सब कंपनीज हमारे इंडिया से वापस चली गई थी। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कब हमारा फैशन चेंज हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इनका भी हमारे बिजनेस पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ये है हमारा इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल कॉज। अब फिजिकल कॉज जो हमारे बिजनेस में फिजिकल कॉज है, दैट मीन्स कि फिजिकल, जैसे मशीनरी है, अब हमारी मशीनरी आउटडेट हो गई है, ठीक है, हम पुरानी ही मशीनरी पे काम किए जा रहे हैं, तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, फिजिकल कॉज। कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो ये सारे हमारे होते हैं फिजिकल कॉज। तो हमारे बिजनेस में जो रिस्क के जो कॉजेज है, पहला नेचुरल बाय नेचर, सेकेंड ह्यूमन कॉज, जो हमारा ह्यूमन बीइंग की वजह से लॉस होता है, रिस्क होता है, वो ह्यूमन कॉज। इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। फिजिकल कॉज बेटा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो हमारी बिजनेस में है, लाइक मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से जो हमारे बिजनेस में लॉस होता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल कॉज, ठीक है। तो ये हमारे 4 रिस्क थे। जैसे कोई बॉयलर है, बॉयलर प्लांट चल रहा है, वो बॉयलर फट गया, तो उसमें प्रॉब्लम थी, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल कॉज। ये हमारे कॉजेज ऑफ रिस्क है। अब बेटा हमारे लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क भी हमारे डिफरेंट टाइप्स की होते हैं बेटा। हमने अभी कॉमर्स में पढ़ा था कि कॉमर्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से हमारी एक सर्विसेज थी इंश्योरेंस, थी ना। तो वो जो रिस्क को अगर हमें ओवरकम करना है बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंश्योरेबल होती है, कुछ नॉन इंश्योरेबल होती है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उनका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो हमें क्या करती है, रिस्क से कहीं कहीं सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। तो हमारे कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो इंश्योरेबल है, कुछ ऐसे होते हैं जो इंश्योरेबल नहीं है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क है जिसको हम इंश्योर्ड करा सकते हैं और कौन से ऐसे रिस्क है जिसको हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी फुलफिलमेंट जो है, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला है हमारा इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस तरह के रिस्क जिसको हम इंश्योर्ड करा सकते हैं। दैट रिस्क इज दैट the insurable risk is that risk which can be insured by the insurance company. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नेचुरल और फिजिकल कॉज है, इसको हम इंश्योर्ड करा सकते हैं। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करने के लिए रेडी है। अब बेटा जो कॉज जानबूझ के हो रहा है उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी, लेकिन जो ऐसी है जो चीज़ें इंश्योरेंस की जा सकती है, जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करेगी। जैसे नेचुरल कॉज है, अब नेचुरल क्लाइमेटीज है, अर्थक्वेक है, इन सब की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी हमारी करती है। फिजिकल कॉज है, अब उस पर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस देने के लिए रेडी है। अब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ने आपका सीक्रेट लीक कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय ने कोई केयरलेस कर दिया, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट ऐसी चीज़ें जिसको मतलब जो हमारी वजह से, ह्यूमन बीइंग जिसकी वजह से नहीं है, जिसका रीज़न ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट देने के लिए रेडी है। तो वो हमारा आता है इंश्योरेबल रिस्क।
दैट इज नेचुरल एंड फिजिकल कॉजेज आर इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल फायर, फ्लड, अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, इन सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड। सेकेंड इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, दैट इज कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसका हम इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस अमाउंट नहीं प्रोवाइड करती है। दैट इज इकोनॉमिक और ह्यूमन रिस्क। इकोनॉमिक बेटा चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या कंपनसेट करेगी? कोई कंपनसेट कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसका इंश्योरेंस कम, अब फैशन हर दिन चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए कितना लॉस प्रोवाइड कर, कितना कंपनसेट करेगी? ये क्या पॉसिबल है? ह्यूमन बीइंग कोई ह्यूमन बीइंग की वजह से कोई रिस्क क्रिएट हो जाता है, जैसे उसने सीक्रेट लीक कर दिया, हमारे बिजनेस से कुछ चुरा लिया, तो ये सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर सकती है? नहीं कर सकती। इंश्योर्ड कौन से है हमारे? नेचुरल और फिजिकल, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। नेचुरल और फिजिकल कॉज हमारे क्या है? इंश्योर्ड है। और जो हमारे बेटा इकोनॉमिक और ह्यूमन रिस्क है उनका हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते, दैट कैन नॉट बी इंश्योर्ड। स्पेक्यूलेटिव रिस्क, स्पेक्यूलेटिव नाम से क्लियर हो रहा है कि इट मे और मे नॉट बी, जैसे सट्टा लगाते हैं ना कि प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो स्पेक्यूलेटिव में क्या है? चेंज इन डिमांड फैशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयर इज चांसेस ऑफ प्रॉफिट लॉस और इट मे बी और इट मे नॉट बी, तो ये हमारा होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क में होता है बेटा या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा, ठीक है ना, या तो होगा तो पूरी तरह से लॉस होगा, नहीं तो लॉस और नो लॉस, तो दैट इज कॉल्ड प्योर रिस्क। जैसे हमारा फायर है, थेफ्ट है, ये सारे इन सबको भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमें इसके लिए भी कंपनसेट प्रोवाइड कराती है। तो दैट इज टाइप्स ऑफ रिस्क। इंश्योरेबल दैट कैन बी इंश्योर्ड, ठीक है, नेचुरल एंड फिजिकल रिस्क आर इंश्योर्ड, नॉन इंश्योर्ड इकोनॉमिक और ह्यूमन, और स्पेक्यूलेटिव इट मे और मे नॉट बी, है ना। जैसे चेंज इन डिमांड, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिमांड चेंज हो, हमेशा फैशन चेंज हो, प्राइस का फ्लक्चुएशन हो, ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हमारी हमेशा ही हो। और उसके बाद प्योर रिस्क में क्या होगा? लॉस और नो लॉस, होगा तो पूरा लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल आग लगेगी तो सब कुछ जलेगा, चोरी होगी तो सब कुछ चोरी होगा, चोर ऐसा थोड़ी ना करेगा कि कुछ पोर्शन छोड़ देगा, तो ये हमारा प्योर रिस्क होता है, इसमें भी हमारे इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। होप सो सबको रिस्क क्लियर हो गया होगा। I think, is it clear? So thank you.